No. No. of the +3 oxidation state. So we said na its chemistry is going to be similar to aluminium and calcium because of the +2 and +3 oxidation state, but more it's going to be towards aluminium and it's going to be more reactive than aluminium. ये discuss किया था हमने, right? Yes, Yeah. sir. Lanthanoids के बारे में. So very simple reactions बेटा, बहुत easy addition reactions ही हमने अभी तक देखे हैं. इसके सारे addition reactions ही देखे ना बेटा हम लोग ने अभी तक. Yes. Yes, sir. Lanthanides in the presence of oxygen are giving you lanthanum oxide, trioxide बोल सकते हैं आप उसको. ठीक है? Done? Yes, sir. Okay. Now look at this. Reaction with water is giving you the same products. ठीक है? Cold water के साथ भी वो react करता है, hot water के साथ भी वो react करता है. The only difference is with cold water the reaction is slow and with hot water the reaction is fast. तो यहाँ पे catalyst की तरह कौन काम कर रहा है? Temperature. Hot water. Temperature. नहीं, water is present in both ना. देखो H2O Yes, यहाँ yes. पे भी है, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दोनों जगह से, राइट? Yes. 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 The difference over here, the temperature is making the difference over here to increase the rate of the reaction. ये हमने देखा भी था ना, temperature is directly proportional to R, जो chemical kinetics करते वक्त. Yes. Yes, sir. Yes. Then No, sir. No. Done. Sir, नहीं हुआ. हाँ बेटा बोलो. हेलो, हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, Oh, sir. sir. Yes, नहीं sir. हुआ sir. नहीं हुआ शायद. नहीं sir. हो गया बेटा? Yes. अच्छा अच्छा. Now lanthanum hydroxides are basic in nature. Huh? If they are basic in nature, what's going to happen? They are going to turn the red litmus into Blue. Blue litmus. blue. नहीं, red litmus into blue color. They will turn, right? Blue, Blue. blue. Yes. Blue. Yes. वही बोला ना रे मैं ये. Yes, sir. Lanthanoid oxide या lanthanoid hydroxide, both are basic in nature. ठीक है? अच्छा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, बट आई वांट टू डिस्कस विद यू. गिव रीजंस द बेसिक नेचर ऑफ लैंथेनाइड. इस पे लेके जाता हूं मैं. हाँ, give reason the basic nature of lanthanoid oxide or lanthanoid hydroxide decreases as we move across the period. Across the period मतलब बेटा ये पेज सब periods में रखे हुए हैं ना. Yes. 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 तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, इसका बेसिक नेचर डिक्रीज होता है. इट बिकम्स अ वीक बेस as compared to beginning में it is a strong base, but as and when you move across this lanthanoid series it becomes a weak base. The basic nature reduces or decreases, the basicity decreases. क्यों बेटा? Any random guess? इसमें नहीं दिखाया है. I want to discuss this. It is an important question from boards as well as from entrance point of view. It is because of one of the things which we have studied in the last class. I want someone who doesn't interact with me to answer this. I want Akshay, Tejas, सर Shubham. क्योंकि लैंथेनॉइड का others. आयन डिक्रीज हुआ है इसीलिए. अमित क्या बोल रहे हो बेटा? सर बिकॉज अक्रॉस द पीरियड लैंथेनॉइड का वो आयंस डिक्रीज हुआ है, Ln2 से Ln हुआ है.
ये अमित और तेजस का आवाज एकदम सेम सेम लग रहा है ना? यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है, विच इज फर्स्ट पॉइंट विच इज सपोज टू राइट इन द आंसर. अभी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो साइज कम हो रहा है, उसका उस पे उसका बेसिक नेचर पे अफेक्ट क्यों आ रहा है प्रणय? प्रणय ने अभी तक अनम्यूट करके रखा हुआ था, मैंने प्रणय बोला तो उसने म्यूट कर दिया. कोई बात नहीं. पीयूष, यू हैव एनी क्लू व्हाई दिस इज हैपनिंग बेटा? नहीं नहीं सर, मेरे को बोलो. पीयूष, डोकले, हाँ डोकले भाई. अस्मिता, आपको आइडिया है बेटा ऐसा क्यों हो रहा होगा? अगर उसका साइज कम हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर कैटायन का साइज कम, कैटायन तो वैसे ही छोटा होता है, ऊपर से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साला और छोटा होता जा रहा है वो, तो वो और छोटा हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आशुतोष? सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और वो यस. इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं कर रहा. हेलो. हाँ बोलो. यस सर. अरे यस सर नहीं, आंसर बोलो. अब पूछेगा क्वेश्चन क्या है ना? नहीं सर, सर साइज की वजह से ये डेंसिटी इंक्रीज होता रहेगा. साइज की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, साइज कम हो रहा है बेटा, हाँ. बढ़ नहीं रहा है हाँ तो साइज. साइज सर, साइज कम हो रहा है ना. हाँ तो डेंसिटी और बेसिक नेचर का क्या संबंध है बेटा? कुछ भी मतलब, हमने साइंस पढ़ा है, हम कुछ भी बोलेंगे. ओके शुभम, यस सर. वांट टू गिव इट सर यहाँ पर डिक्रीज इन साइज होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसके कारण उसकी पोलराइजिंग पावर भी कम हो जाती, इंक्रीज हो जाती है, और वो ये बना नहीं पाता आयोनिक बॉन्ड. भाई उसने आयनिक बॉन्ड अभी बनाया हुआ है, वो सब सर, ये है. सर उसका सर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है और फिर एग्जैक्टली, व्हेन द साइज डिक्रीजेस द शेयरिंग, ये जो आयनिक बॉन्ड है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है. व्हाट डू आई मीन बाय कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड? इट मींस साइज कम होने के कारण जो सामने वाले का न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाता है आयनिक बॉन्ड में, और जहां ओवरलैपिंग हो गया वो बॉन्ड को तोड़ना और डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. Yes. ठीक Yes. है. अब अगर ये कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया, मतलब OH माइनस और O माइनस को रिलीज होने को और डिफिकल्टी होगा. यस. Yes, और sir. अगर इसको रिलीज होने को और डिफिकल्टी होगा तो व्हाट इज बेसिक कैरेक्टर? इट इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ना. OH माइनस आयंस Yes. का पोटेंशियल को Yes. बोलते हैं हम लोग Yes. बेसिक नेचर. कितनी अब easily अगर guys. पहले के मुकाबले कम OH माइनस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर वीक हो रहा है ना बेटा. यस. Yes, sir. बेटा समझे तुम लोग? Yes. सर मैंने शुभम, वही बताया ना सर, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जिस कारण पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा उसका, और कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो यू सेड कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, which is not wrong, but यहाँ पे अपने को कोवैलेंट कैरेक्टर, the word is more important to show the emphasis of that overlapping is happening because of which the release of OH minus is becoming difficult बेटा. ठीक है guys, others, did you understand what are we talking about over here? हम Yes, ये sir. डिस्कस Yes, कर रहे sir. हैं कि Yes. लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स और लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर अक्रॉस द सीरीज कम क्यों होता है. सबसे पहला पॉइंट है उसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज कम हो रखा है. भाई उसका साइज कम हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे ना उसके बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो OH माइनस आयंस को रिलीज होने को डिफिकल्टी हो रही है या फिर टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से बेसिक नेचर रिड्यूस हो रहा है. इज दिस सिंपल? yes, Yes. ठीक है. 3 to 4 पॉइंट आंसर, 2 मार्क्स आपकी जेब में. ठीक है बेटा. यस. H अभी देखते हैं सर्टेन यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स.
ये देखो, अलॉयज में यूज करते हैं लैंथेनॉइड्स को। ये देखो, ये मिश मेटल में यूज होता है। ये मिश मेटल का कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, 95% लैंथेनॉइड मेटल, कोई भी स्ट्रॉन्ग लैंथेनॉइड मेटल ले लेंगे और इसका 5% इज गोइंग टू बी आयरन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कंबाइंड ना, ये सब कंबाइंड 5%, बट 95% इज लैंथेनॉइड। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस समथिंग कॉल्ड एज मिश मेटल? ये कहाँ पे यूज होता है, किसी को आइडिया है कुछ? No. No, sir. नो सर। No, sir. नहीं? अच्छा, कभी आपने जिंदगी में कभी बुलेट खाई है बेटा? नो No. नो। बुलेट कैसे? बंदूक का बुलेट कहते हैं ना। बंदूक का बुलेट बोल रहे हो क्या सर? मतलब सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो गाइस, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मैं हूं यार, मैं बात करता रहता हूँ, तुम लोग बीच में बंद हो जाते हो बात करना। सर आप बंद हो सर गए आप थे। बंद हो गए थे। हेलो बॉस, अगर सब लोग को प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर नहीं। रिमेम्बर, Yes. मेजोरिटी लूजेस। ऐसा कैसे? हाँ, मेजोरिटी लूजेस बेटा, वो याद रखना तो कहावत। अच्छा ठीक है, फॉरगेट इट। ये मिश मेटल काफी सारी जगहों पे इसका एक ही नहीं, इसका काफी सारा एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्टर्डीनेस एंड ऑल, मशीन पार्ट्स वगैरह में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फिंट। ठीक है, लाइटर फिंट बोले तो पता है क्या, जहां से आग निकलती है, यस सर और जहां पता से है। आग निकलेगी अगर वहां पे कमजोर वाला मेटल रहेगा तो गया ना फिर लाइटर, है ना? yes. सर उधर आयरन क्यों नहीं लगाते? ये बुलेट्स मस्त एकदम लिपस्टिक जैसा लग रहा है बेटा, वो लिपस्टिक नहीं, वो बुलेट है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? यस सर समझा। अच्छा, सर वो सेल्स क्या है? बॉम्ब शेल्स। ये बेटा बॉम्ब शेल्स। Yes, sir. ये बेटा बॉम्ब कभी देखा है जिंदगी में? Yes. Yes. No. Grenade. Just grenade. ग्रेनेड देखा है? ग्रेनेड कभी Yes, देखा है? Yes, yes. यस देखा है? किधर? टीवी में। मूवीज में देखा है। अरे रियल लाइफ बोल रहा हूँ नालायक, टीवी में देखा है। सर रियल लाइफ में तो नहीं नो देखा। सर। हाँ, मैंने रियल लाइफ में बॉम्ब देखा है बेटा। ये देखो कितना प्यारा प्लांट है ना। आप ऐसे सक्सेसफुल इंजीनियर बन के गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ना, तो आप ऐसी जगहों पे काम करने जाओगे फिर। ये देखो, यू, यूरोपियम ऑक्साइड, इटरबियम ऑक्साइड, टिंटेड ग्लास, एयर में कलर्ड present। ग्लास वगैरह में इनको यूज करते हैं बनाने के लिए। ऐसे देखे हैं कभी आपने ग्लासेस वगैरह? हाँ, yes, sir. यस सर। ये देखो, Yes, sir. प्रास प्रासियोडाइमियम ऑक्साइड एंड नियोडाइमियम ऑक्साइड। ये देखो टीवी स्क्रीन में एंटी ग्लेयर बोलते हैं ना, टीवी इज एंटी ग्लेयर, ग्लेयर नहीं आएगा टीवी के ऊपर, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग अ लेयर ऑफ प्रास प्रासियोडाइमियम ऑक्साइड एंड नियोडाइमियम ऑक्साइड। ठीक है, yay, what are these guys? Actinoid. Actinoid. मैंने लास्ट क्लास में एक्टिनॉइड्स के बारे में क्या बताया था आपको? सर रेडियो एक्टिव है। रेडियोएक्टिव रहता है। इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे। ज़्यादा information. वेरी गुड। ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है बेटा? हाफ Radio. लाइफ बहुत कम रहता है इसका। और रेडियोएक्टिव भी रहता है और हाफ लाइफ बहुत कम है। खत्म हो गया। एक तो वो बेचारी मैडम क्यूरी इस पे काम करते करते मर गई। ठीक है, मर गई, बहुत yes. अच्छी साइंटिस्ट थी बेटा। ठीक है, उस पे मूवी भी है क्यूरी, वो देखो बेटा तुम लोग। ऐसा अच्छा अच्छा मूवीज देखने का बेटा साइंटिस्ट के लाइफ के ऊपर, यू गेट टू नो मेनी न्यू थिंग्स। यस So the actinoids they start from element atomic number 90 and go up to 103 आणि कोण कोणता है? थोरियम आणि लॉरेंशियम। ये बीच के नाम किसी को पता है? यूरेनियम तो पता है, पैलेडियम भी पता है, नेप्टूनियम भी पता है, प्लूटोनियम भी पता है, अमेरिशियम भी पता है। मेरे सीएम क्या है? Lawrencium. ठीक। कैलिफोर्नियम
कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, बीके क्या है? बीके बर्केलियम, हाँ, बकेलियम, बकेलियम, अच्छा। सीएफ क्या है? कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया। ईएस क्या है? कैलिफोर्नियम, आइंस्टेंटिनियम। इंस्टेंटेनियम, एफएम क्या है? क्रोमियम है। फर्मियम, फ्रांसीसियम। और मेंडेलिवियम, फिर एमडी क्या है? मोहम्मदीनियम नहीं, मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम, नो क्या है? नो, नोबेलियम, नोबेलियम, नोबेलियम। अच्छा, इजी है। लॉरेंसियम। हाँ, वेरी गुड बेटा, वो लिखा हुआ है वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी ये बेटा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम लोग को अभी तक समझ में आना चाहिए। हम लोग इस पे आ गए, एक्टिनॉइड्स पे आ गए। हमने एस ब्लॉक देख लिया, हमने पी ब्लॉक देख लिया, हमने डी ब्लॉक तक देख लिया, हमने एफ ब्लॉक भी देख लिया। अब जब हम लोग एफ ब्लॉक के सब पार्ट पे हैं, तो आप ये मत पूछना कि ये कैसे लिखते हैं, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो बेटा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एज पर हाउबाउ प्रिंसिपल। और इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होते हैं। द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द 5f ऑर्बिटल, वेयर वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 5f1 to 14, 6d 0 to 1। 6d में 1 कब होगा बेटा? जब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फुल फिलिंग, हाफ फिलिंग और एम्प्टी फिलिंग द f ऑर्बिटल, राइट? एंड 7s2, 7s2 मतलब 7s2, simple, last orbit, फुलफिल्ड है वो। the last orbit possible। क्या बोल रहे हो बेटा? 7th पीरियड में भी आता है ना 7s2 का मतलब। हाँ, इसका मतलब ये हुआ एक्टिनॉइड जो होते हैं ये हमारे लास्ट पीरियड में लाई करते हैं, 7th पीरियड। ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, किसी को पता है? थर्ड थर्ड ग्रुप। बोथ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स लाई इन द थर्ड पीरियड, ठीक है ना बेटा? ये देखो रे पीरियड टेबल, अरे थर्ड पीरियड में नीचे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने प्यारे प्यारे एक्टिनॉइड्स, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम, पैलेडियम ठीक नहीं है। है, ये तीन जो है, क्या बोल रहे बेटा? वो पैलेडियम नहीं है, प्रोटेक्टिव। तो मैंने कब बोला पैलेडियम? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये तीन नेचर में पाए जाते हैं। बाकी सब क्या है? मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है। उनको जबरदस्ती लैब में बनाया गया है, इसीलिए उनके नाम ऐसे हैं, प्लैनेट्स के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है बेटा? यस, ठीक है। अब ये थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम, ये भी रेडियो एक्टिव ही हैं, पता है, राइट? यस सर। सर, हाँ, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट से बाकी के एलिमेंट्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। अब ये न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट हमने 11th में सीखा था बेटा, देखो। सर ये यस For your information, FYI, you can write down this. Not important, but you can write down कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए, कुछ पता नहीं। What is this? वो एरो पे क्या लिखा हुआ है बेटा? सर एन गामा, गैमा गैमा और बीटा। वो Na की अल्फा है। सर, उधर एन भी है उधर। हाँ, तो ये होना क्या चाहिए? अल्फा गामा डीके चाहिए अल्फा था। होना अल्फा चाहिए। गामा। यू रिमेम्बर ना बेटा, एक अल्फा रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर 4 से, और एटॉमिक मास नंबर 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। यस Yes or no? अल्फा बीटा डीके गामा डीके। But this is not alpha. This is nothing but a simple neutron which is क्या releasing. निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा एक। N is neutron बेटा, ठीक है। सर उधर 3.212 h। सर वो एच नहीं आना चाहिए था ना उधर। क्या बोल रहे बेटा? वो 3.212 वो एच नहीं आना अरे चाहिए that is था। the half life बेटा, that is the half life. अच्छा Hours है वो, hours। उसको कितना टाइम लग रहा है बीके से सीएफ बनने में? डन? नो अच्छा, सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। सर, हो गया, चलो। नहीं हुआ। न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट करके ये सब ऐसा बनाते हैं अपन सर आर्टिफिशियली।
हो गया। सर क्या वेट आदमी है यार, बोलते ही हो जाता है तुम लोग का। अरे बाप रे। सर डन। नहीं सर नो Done, sir. ओके। मैंने मजाक मजाक में तुमको 3 12th के चैप्टर्स पढ़ा दिए। तुमको ये मजाक मजाक में समझ में आया क्या? नहीं पढ़े अभी तक। अबे ये भी हो जाएगा ना, 3 चैप्टर ना हो जाएंगे फिर। सॉलिड स्टेट पढ़ लो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो, और इसका अब पूरा हो गया सर, एंट्रेंस। डीएनएफ ब्लॉक हो रहा। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। द अनटोल्ड यस मिलेनियम। Someone is very happy it seems. All the actinide elements are radioactive. ठीक है, ये जो पहला 3 मेंबर है ना, उनका हाफ लाइफ इज वेरी रिलेटिवली लॉन्ग। ए बेटा हाफ लाइफ देख रहे हो उसका? शी 14.05 बिलियन इयर्स, 32,760 इयर्स, 4.7 बिलियन इयर्स। Are you looking at the half life? यस बेटा Yes. हाफ लाइफ ज्यादा है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। सर पूरा है सर। बुरा है पर बुरा है एक्सट्रैक्शन करने के लिए अच्छा नहीं है नहीं, पर तू ह्यूमन बोला लाइफ रेडियो अच्छा है। एक्टिव है। तू अच्छा क्यों बोला बेटा उसको? कोई सर बुरी वो अगर चीज ज्यादा एक्सट्रैक्शन टाइम के लिए करने जिंदा है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? सर बट सर वो पूरा सर डिस्पोजल के लिए बहुत ज्यादा ये। ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड, बिकॉज और उसमें ऊपर से से कंटिन्यूस बहुत रेडियो एक्टिविटी निकलता रहेगा ना बेटा। यस यस Yes. ए बेटा हिरोशिमा नागासाकी, यस Yes. अब भी तक सर वो डिफेक्टिव न्यूक्लियर पीस पैदा पावर हो रहे प्लांट उधर। बनाने के लिए अच्छा है ना ये सब यूरेनियम वो सब। एग्जैक्टली। देख बेटा, अगर इस बुरी चीज को हमने अच्छे से हार्नेस किया तो ठीक है, बट अगर वो यस न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी दिन आउट ऑफ कंट्रोल होके चेरनोबिल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यस ये बेटा चेरनोबिल देखा है क्या रे? यस सर सर 3 माइल्स यस ये प्लीज 3 देखो, माइल्स प्लीज केमिस्ट्री स्टूडेंट्स प्लीज वॉच इट। सर 3 माइल्स आइलैंड भी हुआ जो अमेरिका में हुआ। हाँ 3 माइल क्या बोल रहा बेटा? 3 माइल्स आइलैंड। 3 miles island. 3 माइल्स आइलैंड। यस और ये अच्छा मूवी फुकुशिमा है। में हुआ था, फुकुशिमा जापान में। इज दिस अ मूवी और समथिंग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नो सर इसका एग्जाम्पल है वो उधर पे भी हुआ है. उधर पे अरे भी हुआ मेरे को था। मूवी बता रहे, मैं मूवी देखेगा। मिर्जापुर 10 ये देखो, बाकी के मेंबर्स का हाफ लाइफ देखो बेटा, 2.5 दिन, 960 मिनट्स, 160 डेज। ठीक है, दैट इज ओके, खत्म हो जाएगा वो जल्दी। ये लिखना है तुम लोग को। यस व्हाट इज हाफ लाइफ, गिरीश? एक गिरिया ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी 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 जी। गिरीश है ही नहीं। जी नाम से सिर्फ एक ही बंदा है, गौरव सिंह। वो भी आवाज नहीं करेगा, वो भी मैसेज करेगा। बोलो, ऐसे तो मेरे बच्चों के नखरे हैं। चलो ठीक है, क्या कर। आर्यन सिंह, पीयूष बहिराम। जब तक बच्चे लिख नहीं रहे तब तक मैं लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं। उसमें भी लोगों को सोना है, बात नहीं करनी है। चलो ठीक है बेटा, अपना भी टाइम आएगा, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और हम ऑफलाइन मिलेंगे। और जब ऑफलाइन मिलेंगे यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू टॉक टू मी। हो गया रे? नो हाउ मेनी मोर इयर्स यू गोइंग टू टेक टू राइट इट? थोड़ी हाँ, 4 इयर्स चाहिए इसका। गौरव ने रिप्लाई किया है, amount of time it takes for 1/2 of the radioactive acid to take। शुक्रिया भैया, करेक्ट है बेटा तुम्हारा आंसर। गौरव, तेजस लिख लिया क्या?
यस सर। तो हम लोग किसके लिए रुके हुए हैं? शारन के लिए? Yes. ये लड़की बहुत स्लो लिखती है। अदर्स हैव यू रिटन? अदर्स को तो क्या ही फर्क पड़ता है। Yes. यस सर। मत लिखो, दिखाओ मत Yes. दिखाओ, सर हम लिखा सो है। रहे। Yes. केदार, गुड मॉर्निंग केदार। Oh yes, sir. अच्छा हो गया सर। अच्छा, सर एग्जाम में हाफ लाइफ नहीं पूछेंगे? क्या? एग्जाम में हाफ लाइफ नहीं पूछेंगे? नहीं नहीं, 12th में हाफ लाइफ नहीं आएगा। ये मैं बस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ यू नो, यू नेवर नो राइट, जेई एडवांस में क्या पूछ लें आपको। यस सर। ऐसा है। सर ये पूछते हैं एडवांस में? अरे नंबर्स नहीं पूछेंगे रे, बट इट अगर इसके ऊपर कोई सम आ गया और आपको कुछ लॉजिक लगाना है, तो अगर आपको इसका हाफ लाइफ पता है तो थोड़ा लॉजिक तो लगा पाओगे आप, ये बोल रहा हूँ। हाँ सर, डायरेक्टली तुम लोग हमेशा इंफॉर्मेशन को ऐसे क्यों देखते हो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर करके कहीं ना कहीं काम तो आ सकता है। यस यस सर, समझा। यस तो और नो? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली सर। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। हाँ, यस। दिया नहीं रहेगा तो। हाँ, just give me a second guys, I need to plug this into charging. I'm so No. I have died every day waiting for you. आता आपण बघूया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स. No. Why no? What nonsense? सर हो गया वो? अरे एक्टिनॉइड्स का कहाँ पे हुआ? वो तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक yes, कॉन्फिगरेशन yes. है ना. ये देखो कितनी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. 6d1 के 3 केसेस लग रहे हैं. 1 2 3 4 5 केसेस हैं. सॉरी 6 केसेस है, 6 5. 5 है। 3 केस 5 है, 6d2 भी. तुम सर चश्मा ऊपर लगा. 62 आ रहा है, ऊपर 6d2 आ रहा है. क्यों लेकिन ऐसा? कॉन्फ़िगरेशन में 0 to 1 दिया था। 0 to 1 दिया है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. क्यों ऐसा हो रहा है? एक्सेप्ट थोरियम, प्रोटैक्टेटियम, यूरेनियम एंड नेपटूनियम. अब यहां पे डी ऑर्बिटल में क्यों पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन? ठीक है. 5f and 6d. अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो it keeps on jumping. Now there is very less difference between 5f and 6d energy levels. You remember मैंने आपको f block में बताया था, Yes. there is less Yes. difference between 4f and 5d levels. Yes. यस सर। उसी तरीके से Yes, यहाँ पे sir. 5f और 6d है. अभी दिस इज अ हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप सामने देख रहे हो ना, ये भी फिक्स नहीं है. इट कीप्स जंपिंग. So because that 6d orbital is small and 5f orbital is also available, electrons they keep on switching their positions. तो यहाँ पे 6d2 भी पाया जाता है, यहाँ पे 5f2 भी पाया जाता है, कभी 5f1 6d1 भी होगा. That way. ठीक है. हाईली Yes. अनस्टेबल है ना बेटा. अनस्टेबल. यस फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल मतलब एक फिक्स तरीके से इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोटैक्टेटियम, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि थोरियम इज डी ब्लॉक एलिमेंट. इट इज स्टिल एन एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए वैसा हो रहा है ना वो। हाँ बेटा, यस. बाकी ये 4 को छोड़ेंगे तो रेगुलर वे से देखो 5f भर रहा है. शीश 7. अब इस 7 2 बार क्यों है? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. Half filled. Yes. Yes. अच्छा, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 2 बार क्यों है? अगेन द Full सेम रीजन, filled. Half completely filled filled. orbital. Full filled. यस. इनके नाम देख लो. थोरियम, प्रोटैक्टेटियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसीसियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फेमियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम. यस Yes. ये देखो. अभी ये क्यूरियम और लॉरेंशियम में ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अगेन आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड पॉसिबिलिटीज ऑफ द एफ ऑर्बिटल.
अभी ये 5f ऑर्बिटल्स आर नॉट दैट डीपली बरीड, मतलब दे आर वेरी सुपरफिशियल, बाहर की तरफ रहते हैं ना बेटा। ये बेटा Yes. अगर ये s Yes. है, अगर ये किसके पास है, ये न्यूक्लियस के पास है ना। Yes. ऊपर Yes. जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे इनका एनर्जी बढ़ता जाएगा। अब when I say deeply buried, which of the orbitals can you see in this diagram as deeply buried? S हो गया, FD. P हो गया, D हो गया, D बट हो गया, F को अगर आप देखोगे बेटा, F हमेशा बाहर के साइड पे है बाहर के साइड है। यस है ना बेटा, Yes. यस हमेशा Yes. थोड़ा सा बाहर के साइड पे ही है। और एनर्जी सेम है लगभग। हाँ, एनर्जी लेवल भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है उसके अंदर। यस Yes. Now, this is the reason why your actinoids have high number of oxidation states। एक तो इनके पास काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स इजीली स्विच कर सकता है। ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था ना, आयरन ही Fe2+ और आयरन ही Fe3+ बनाता है, कॉपर ही वेरिएबल +1 और ऑक्सीडेशन +2 बना Yes. सकता है, ठीक है। बट Yes. उसमें उसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगती है। यहाँ पे तो हल्का सा एनर्जी भी दिया या फिर नहीं भी दिया ना, तो वो अपने आप ही स्विच कर लेता है। ये स्पॉन्टेनियस Yes. है। यस, और इसीलिए वो इजीली बॉन्ड्स वगैरह भी बनाता है। ये देखो, दिस इज द लिस्ट ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लुक एट द फर्स्ट एलिमेंट्स, प्रो प्रो प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशिशियम, ठीक है। सर बाकी का रीजन, सब यहाँ यहाँ पे रीजन क्या दिख रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Unpaired f ऑर्बिटल। बाकी सब में क्या हो जा रहा है, उसके बाद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा ना। पेयरिंग शुरू हो रहा है। यस Pairing. Yes. यस, सर तो F आफ्टर लुकिंग एट दिस, आपको क्या लगता है इसका, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सा लिख सकते हैं हम लोग? +3 Plus 3. Plus +3 3. 3 +3। विद एक्सेप्शन ऑफ थोरियम। यस, सर पीछे लिखने का सर दो। Sir, लिखना था वो electronic यू configuration. वांट टू राइट इट डाउन? Yes. Yes. सर F से लास्ट होता है, और क्या बोल रहे बेटा? F से लास्ट होता है। F से F शेल इज वेरी सुपरफिशियल। व्हाई? बिकॉज उसका एक तो ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। इट इज हैविंग अ वेरी रैंडम शेप एज कंपेयर्ड टू S and D ऑर्बिटल्स and P also। सर G सबशेल भी होता है ना, G सबशेल। G subshell, it is a very rare case, मतलब उसमें नहीं, पर अभी that is a different topic altogether बेटा। सर उधर तक SP, एलिमेंट गया नहीं अभी तक ना। it's not that ऊपर तक अभी तक एलिमेंट गया नहीं है, but then there are many man-made elements which are still under क्या बोलते हैं, जो बन चुके हैं, जो अंडर प्रोसेस है, और जो अभी तक पीरियोडिक टेबल में दिख नहीं रहे, ठीक है। So there are still many more things which we do not know about the periodic table, about the elements present or not। अभी अगर तुम ओशन को अगर एक्सप्लोर करोगे ना, तो कल आपका पीरियोडिक टेबल फट जाएगा, बिकॉज ओशन का तो अंदर अभी तक कुछ ज्यादा देखा भी नहीं है इंसान ने। और जिस दिन पता चलेगा कि ओशन Yes. के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो फिर पीरियोडिक टेबल और बढ़ जाएगा, है ना। सर एक्टिनॉइड्स का सेक्शन रॉन्ग प्रूव किया गया ना पीरियोडिक टेबल में। एक्टिनॉइड्स का क्या प्रूव किया है बेटा? वो एक्टिनॉइड का सेक्शन है ना हाँ, पीरियोडिक टेबल में रॉन्ग प्रूव किया गया है। रॉन्ग प्रूव किया गया बिकॉज ऑफ देयर हाईली अनस्टेबल नेचर, राइट। यस वो सर वो 90 से 108 तक कुछ तो एक साइंटिस्ट ने मतलब ये उसका पूरा ये चेंज किया है, सीक्वेंस चेंज किया है पूरा एलिमेंट सीक्वेंस चेंज किया है। हाँ यस सीक्वेंस। Yes. So this is the updated thing which he is talking about, but अपने को बुक में जो दिया है अपने को, we have to stick to that only बेटा। But yes, you are right, तेजस। तो जब बाकी के लोग रील्स और ये सब देखते रहते हैं, तब उस टाइम पे तेजस एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा होता है। डोयोनो में दिया है। So this is the difference, guys. I'm talking to others. This is the difference. हो गया बच्चों? यस यस इसके ऊपर No, ज्यादा sir, नहीं हुआ। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है। I'm just, but that doesn't mean you not study this. Obviously, entrance में कुछ भी आ सकता है. So better we be prepared for that.
Sharon, we are only waiting for you, beta. No pressure, you can do it aram se. I'm just informing you. In the meantime, I will. सर वो प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम में वो 6D1 क्यों भर रहे हो, फिर से बताना भैया। सेम रीजन जो मैंने आपको बताया था ना, unstable electronic configuration and the energy level being the same. Yes. यस सर। स्मॉलर d ऑर्बिटल्स है, तो स्मॉलर ऑर्बिटल्स में जल्दी घुसते हैं। ये f क्या होता है, सुपरफिशियल है ना, तो d उसके थोड़ा अंदर है, तो वो क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस की तरफ। हाँ सर समझा। इसका यही प्रॉब्लम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ना इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी। सर वो आपको पूछा था ना मैंने, वो 4D और 5D वाला, तो उसके अंदर जो क्रोमियम और कॉपर के नीचे इधर भी सर वैसा ही हो रहा है, थोरियम, ट्यूरियम और वो लास्ट में लॉरेंशियम में भी, और पिछले में यूरोपियम वैसा हो रहा है, वो नीचे नीचे लाई कर ऊपर नीचे, बट वो 3D 4D 5D में ऊपर नीचे नहीं लाई कर रहे, वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। करेक्ट, मैं वो बोर्ड पे आपको बताने वाला हूँ, मैं उसका देखा था रीजन। इट्स वेरी इजी, इट्स बिकॉज़ दे आर लाइंग इन द सेम पीरियड एंड ऑल दैट। यस सर, कुछ टॉपिक पेंडिंग भी है जो। यस आई रिमेंबर दैट बेटा, यस। ये हो गया बेटा? यस। आता इसमें एटॉमिक और आयनिक रेडियस सेम रहेगा बेटा, जो हम लोग ने वहां पे देखा था? यस सर, ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो, इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। यस। यस एक आधा एक्सेप्शन रहेगा बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड ऑल। यस, एक्टिनोइड बट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन इफ यू सी द आयनिक रेडियस, देयर इज अ स्टडी डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस हम नहीं देख करके आयनिक रेडियस पे ध्यान देंगे, तो आयनिक रेडियस पे एक भी एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ये बेटा सेम ग्राफ हमने देखा था फॉर लैंथेनॉइड्स, we called it as lanthanoid contraction. यस। Similarly हम लोग कह सकते हैं actinide Actinoid contraction भी होता है, Actinoid contraction. ठीक है ना बच्चा? This is your actinoid contraction. सर मतलब look at वो this. एक्टिनोड का साइज कम हुआ तो एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन, नाम जैसे वैसे ना। Yes, contraction का मतलब भी साइज कम होना ना बेटा। ये देखो, यस, कॉन्ट्रैक्ट होना। ये देखो बेटा, इसका ना अगेन द सेम थिंग, f ऑर्बिटल्स की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है ना बेटा। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको पैलेडियम बोल रहा हूँ, प्रोटैक्टिनियम का न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, एंड उसकी वजह से ये श्रिंकिंग हो रहा है, ठीक है? Yes. सर डी ऑर्बिटल का भी प्रॉपर शील्डिंग नहीं होगा ना? d ऑर्बिटल का शील्डिंग इज बेटर देन f ऑर्बिटल का शील्डिंग, बट पुअर देन एज कंपेयर टू s and p. S&P, यस। Let us see, Lord, let us discuss about their oxidation states now. Again, they are showing variable oxidation states, lanthanoids और actinoids के इसके कंपैरिजन में। लैंथेनॉइड में हमने कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था बेटा? उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स दूसरे +2 and +4। Very good. They are showing +2 and +4 also. The reason was because of attaining configuration of noble gas or attaining half-filled or full-filled orbitals. But उसमें भी they are acting as strong reducing agents or oxidizing agents. Yes. It depends whether they are turning to +4 से +3 हो रहा है या फिर +3 से +4 हो रहा है, right? यस सर। यस सर, समझा। +2 से +3 हो रहा है तो reducing agent, +4 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन पता है ना? यस सर, इलेक्ट्रॉन गेन और एक्सेप्ट करेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एलिमेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ द एलिमेंट्स आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे दिस इज पॉसिबल बिकॉज 5f 6d और 7s इसके बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे तो
ठीक है ना। यहां से यहां कंपेयर करो बेटा, ये दो लेवल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और ये दो, इसके बाद सीधा इसमें जा रहा है ना, तो ये तीन, एक दो तीन, ये तीन ऑर्बिटल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो आसपास होने के कारण दे कैन इजीली एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज इन द सेंस ट्रांजिशन हो सकता है, लूज हो सकते हैं। इस समय 7p तो नहीं आता इस बार? 7p तक नहीं जाएगा ना। यस यस, सर 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सर हाँ बेटा, एक डाउट है बोल बेटा बोल। सर, वो जब मतलब ऑर्बिट अरेंज होता है ना, तो हाँ। सबसे पहला वो 7s, बाद में 6d, बाद में 5f, सच में आता है कि अपना वो मतलब आउटवर्क प्रिंसिपल बोलते हैं इसलिए करते हैं कि सच में आता वो है वो? सच में बढ़ता है बेटा, सच में बढ़ता है। It's because of the slight difference in the energy levels. सर But मतलब सच में ऐसे लाई करते हैं 7s के but- बाहर है वैसा? हाँ, बट एक्टिनॉइड्स में क्या हो रहा है, इट इज अनस्टेबल बिकॉज एनर्जी लेवल ऑलरेडी हाई हो रखा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जाए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इट डिपेंड्स वो कैसे एनवायरनमेंट में है, कैसे कंडीशंस में है, दैट वे। यस सर। मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, फिर उसके बाद +4, +5, +6 एंड +7। +4 इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप, एक्चुअली इसको ग्रुप बोलना गलत रहेगा, अक्रॉस द सीरीज पीरियड। सो मिनिमम क्या रहेगा, +3, और मैक्सिमम क्या रहेगा, +7। अच्छा, ये अगेन डी ब्लॉक का कुछ याद आ रहा है आपको, ऐसा ट्राइंगल बना रहता था, ऑलमोस्ट वैसा है यहाँ पे, पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन। यस सर। Yes, sir. अब ये +3 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं कोई एक्टेनॉइड सॉल्ट को पानी में डालेगा तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा बेटा। ये हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ वाटर, द सॉल्ट विल ब्रेक इनटू इट्स आयन बिकॉज ऑफ वाटर। अब व्हाट्स हैपनिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक्टेनॉइड को जाकर के चिपक रहा है और उसका बॉन्ड तोड़ने का कोशिश करेगा, Yes. ठीक है, तो वो वहां पे आयनाइज हो जाएगा। पर और सेम चीज अगर लैंथेनॉइड को मैं पानी में डाल दूं, लैंथेनॉइड सॉल्ट को अगर मैं डालूं पानी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये उसको हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। What is the basic difference between actinoids and lanthanoids का salts? Actinoid salts get hydrolyzed in water, but lanthanoid salts are not getting hydrolyzed in water. सर नहीं समझा Because सर। उसके compound में already उसका +3 oxidation state है, which it does not allow other elements to break. यहाँ पे because of variable oxidation state, they are in the position of breaking and changing their oxidation states, and that is why it is easy to hydrolyze actinoid salt as compared to lanthanoid salts. But again, actinoid salts के साथ आप काम करोगे तो आपको exposure का भी बहुत ये रहता है problem. सर मतलब लैंथेनॉइड में +3 में गया तो ज्यादा मतलब इजीली वो Yeah, it is stable ना, तो it won't allow the other element to other compound to affect its बट oxidation एक्टिनॉइड्स state में गया because वो +3 stable हो में तो चुका है। जाएगा दूसरे इसमें ना? क्या बोल रहे बेटा? एक्टिनॉइड में +3 में गया हाँ, तो जाएगा दूसरे इसमें भी वो? यस, वो दूसरे स्टेट में जा सकता है, यस। बट लैंथेनॉइड्स में हमने क्या देखा था, दूसरे स्टेट से वो +3 में आने का ट्राई करता है। यस सर। Yes, sir. They are all metals. मेटल्स है, यस मेटल्स। They are highly reactive in finely divided state. Obviously powdered form में reactive state ज्यादा बढ़ जाता है। आगे एयर में इसको रखेंगे तो ऑक्साइड कोटिंग की वजह से रस्टिंग भी होता है इनमें। I am very sure you know now why they are paramagnetic. यस Yes. Because of number of unpaired electrons. नंबर 1 ज्यादा है। Yes. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स देखते हैं थोड़ा सा। सर वो लैंथेनॉइड में एक डाउट था, उसके अंदर एलिमेंट का मतलब एक एग्जांपल दिया था कि 27 डिग्री सेल्सियस पे गया तो वो फेरोमैग्नेटिक बनता है, ऐसा बोला था सर वो। बट फ्यूरी पॉइंट के नीचे गया तो पैरामैग्नेटिक बनना चाहिए ना, फेरोमैग्नेटिक कैसा बनेगा? फेरोमैग्नेटिक बनेगा बिकॉज उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे और सब एक डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। यू रिमेंबर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द एलिमेंट टू बिकम फेरोमैग्नेटिक।
हमने ये सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। यस 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 सर, बट इधर बोले कि डिक्रीज किया टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस के से कम किया, मतलब क्यूरी पॉइंट से नीचे लिया ना टेम्परेचर को, हाँ, तब वो फेरोमैग्नेटिक बन रहा है, ऐसा बोला है कौन से किस में लिखा है ये स्टेटमेंट? स्टेट बोर्ड सर के ये book में हमारे लिखा है। हमारे बुक में ही है। यस टेक्स्ट बुक में है? यस यस स्टेट बोर्ड सर, के बुक बिलो 16 डिग्री सेल्सियस लिखा है उन्होंने। ओके, आई हैव टू चेक दिस। एक काम करो, उसका फोटो मेरे को भेज सकते हो? में। यस यस सर। सर। मुझे भेज देना बेटा, ठीक है? ये देखो, एक्टिनॉइड्स को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AN, रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव यू हाइड्राइड एंड ऑक्साइड बोथ, ठीक है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा पानी का, और ये क्या बनेगा? एक्टिनाइड हाइड्राइड बनेगा और एक्टिनाइड ऑक्साइड बनेगा। अभी हमने देखा था दे आर इजी टू हाइड्रोलाइज। अभी आप देख रहे हो बेटा, एक ही एक्टिनियम जो है दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, एक्टिनाइड हाइड्राइड एंड एक्टिनाइड ऑक्साइड। यस Yes. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी गुड, यस। वन, एक एक्टिनॉइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से दोनों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। Done? यस No. सर तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ बारिश हो रही नो बारिश। है। अच्छा, थोड़ा जल्दी करो बेटा, आई नीड टू रैप अप अ बिट अर्ली टुडे, आई हैव अ अर्ली मीटिंग टुडे। डन बेटा, एक ही रिएक्शन लिखना बेटा, ये डायग्राम मत बनाना तुम। Yes. शायद Oh, yes. Oh, yes. डायग्राम बनाया मैंने। HCl के साथ भी रेडी रिएक्ट करता है क्लोराइड बनाने के लिए, एंड हाइड्रोजन गैस रिलेटेड। वे बेटा मेटल है, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन, तो ये भी मेटल है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिलीज होगा, है यस ना? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। सर ये बेसिसिटी नेचर रहेगा अगर क्या तो सर, क्या बोल रहे हो बेटा? लेंथेनेट जैसे लेस बेसिक का बढ़ने का है, तो इसका भी वैसे लेस बेसिक होगा ना? यस, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें भी हो रहा है ना बेटा? यस। डन? यस No. यस सर। एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्टिनाइड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक, एक्टिनाइड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। are more basic as compared to lanthanoids ना? अच्छा यस सर, समझा। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन के लिए। Yes. शायद ना जूमिंग अभी तक हो गया रहेगा बेटा। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड से ये बहुत स्लाइटली इफेक्ट होता है, क्यों? बिकॉज उससे पहले रिएक्शन होने से पहले इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर मतलब रस्टिंग हो जाता है उसका, तो आगे रिएक्शन ज्यादा पॉसिबल होता नहीं। Yes. Actinoids and sodium hydroxide give no reaction. With halogens and hydrogen and oxygen, corresponding oxides, halides and hydrides बनाता है। Done? नो सर, नहीं हुआ अभी तक। All of my डन। तुम्हारे कॉलेज में ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस का कोई फंक्शन नहीं कर रहे क्या वो लोग? नो कर रहे हैं। कर रहे। यस सर। यस सर कर रहे। तुम में से कोई गाना बीना नहीं गा रहे उसमें? नो। नो वेरी सैड। डांस भी नहीं कर रहे हो? नो।
हम लोग के टाइम पे 15 अगस्त के दिन हमको स्कूल और कॉलेज जाना होता था और बहुत ही पेट्रियोटिक फीलिंग आती थी उससे। पता नहीं तुम लोग कभी 15 अगस्त के दिन स्कूल गए हो कि नहीं गए हो? उस दिन Yes, लड्डू sir, मिलता था। गए। Yes, sir. उस दिन मस्त घी वाला लड्डू मिलता था हमको स्कूल में। कभी स्किट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है? No, Yes, yes, yes. Oh. भाई मैं तो गजब का एक्टर था। अच्छा, this one is not fake, but seriously, I won mono acting awards on district level. Done, beta? Done. Congratulations. Yes. Hey, Yes. thank you, man. I was in 9th standard back then. Congratulations, sir. ये देखो, they थोड़ा बहुत they resemble each other ना? अगर 5F का configuration देखेंगे तो yes. अभी 4F का binding energy is stronger as compared to 5F because obviously ज्यादा exposed है। अभी इनके डिफरेंसेस देखते हैं अपन थोड़ा सा, एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स के। ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये भाई का +3 है, बट +2 ये मैंने डिस्कस किया है बेटा, ठीक है? Yes. ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर नंबर्स भी नहीं लिखोगे और ये भी बता दोगे ना कि यहाँ पे स्टेबल इज +3 एंड यहाँ पे वेरिएबल, तो भी इट इज काउंटेड एज अ डिफरेंस। व्हेन आई टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली 4F is going to have a higher binding energy as compared to 5F because 5F is more exposed, more outermost इसमें है वो, राइट बेटा? एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मतलब 4F जब बॉन्ड्स बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू 5F बॉन्ड्स, ठीक है? Yes, sir. Sir, Yes. lanthanum में Yes. सब शील्डिंग इफेक्ट 4F और 5F दोनों का शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, बट कंपैरिजन किसमें बीच में हो रहा है? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। तो ऑब्वियसली 4F will have a greater shielding effect Greater and shielding 5F will have a effect. poor Poor shielding effect. shielding effect. तो Poor अगर shielding मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो किसका आयंस ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली एक्टिनॉइड्स का एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। actinoids. 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 Yes. हाँ. बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है बेटा, ये लिख लेना आई वुड से, बिकॉज एग्जाम में अगर आया तो ऐसे ही लिख देना विद प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा प्रॉपर्टी साइड में लिखोगे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड लोगे ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Sir, lanthanoids are non-reactive except promethium, or actinoids are all reactive. यस, Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये लिख लिया शैरन? Sir, No, वो sir. सर बोल बेटा। लैंथेनॉइड का आयन बड़ा चाहिए ना एक्टिनॉइड की वजह से, क्या? क्योंकि वो 4F 5F के कंपैरिजन में कम शील्डिंग मतलब ग्रेटर शील्डिंग दिखा रहा है। बाइंडिंग एनर्जीज बेटा, बाइंडिंग एनर्जीज। बॉन्ड बनाते वक्त कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा? यस सर। ओके, यस। तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ, और ये यस एक्टिनॉइड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यस बेटा, बनाते हैं। 1 to 5 4 ओके। That is first inner transition series है, second inner transition series. अरे वाह, मेरा शुभम, मेरा प्यारा शुभम। गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. ये लिख के हो गया बेटा? No. हाउ मेनी मोर इयर्स? डन। 5 years more. 5 years more. Done, sir. Done. ओके। शैरन? सर इधर दिया No, लैंथेनॉइड sir, का नहीं। लेस कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्टिनॉइड का मोर कॉन्ट्रैक्शन आयनिक रेडिया है, तो लैंथेनॉइड का साइज बड़ा रहेगा ना एक्टिनॉइड के वजह कंपैरिजन में। क्या बोल रहा बेटा? सर इधर थर्ड पॉइंट में दिया है लेस कॉन्ट्रैक्शन इन आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनॉइड, यस। और इसका दिया है मोर कॉन्ट्रैक्शन।
तो लैंथेनाइड का Like ज्यादा 4 रहेगा of ना, electrons बड़ा. have greater shielding effect and thus less contraction in ionic AD. हाँ correct. तो ionic Actinoids ज्यादा electrons का बड़ा रहेगा as compared to actinoids. Actinoids, yes sir. Yes सर yes. इसमें Sorry मैं ज्यादा उल्टा बोल देता हूँ चल रहा है. Yes. एक्टिनॉइड मैं उल्टा बोला रे. सर एक्टिनॉइड ज्यादा बेसिक इन नेचर है ना लैंथेनाइड से। Yes. ये देखो तुम्हारा सब पॉइंट्स आएगा इधर शुभम. That is why I was just saying yes at that time. Tendency Yes. to form complexes is comparatively higher in actinoids. Can someone tell me what is the reason for this? Complexes यहाँ ज्यादा क्यों बन रहा है और यहाँ कम सर क्यों? यहाँ पर कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल Yes. ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट actinoids में है इसलिए वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है. डी ब्लॉक से बेसिक कैरेक्टर की अगर बात करेंगे लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक, एक्टिनॉइड्स आर रिलेटिवली मोर बेसिक. रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो लैंथेनाइड्स में सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है एंड एक्टिनॉइड्स में सब रेडियो एक्टिव है बेटा. सब रेडियो एक्टिव है, यस सर. लिख लिया शारन? No, sir. अच्छा ये आता है हाँ क्वेश्चन, ये लिख लो सब लोग. बाकी लोग बच्चे लिख रहे हो ना बच्चे? यस. Yes. मैं आप लोग को भूला नहीं हूँ. इट्स जस्ट दैट आप लोग बात नहीं करते हो इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहता कि ठीक है भाई सो रहे हैं तो सोने दे, किसी की नींद तो पूरी हो. Yes. Yes. सर इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है लैंथेनाइड? मैग्नेटिक मोमेंट बहुत प्यारा आएगा बेटा. दोनों पैरा मैग्नेटिक है. सर मैग्नेटिक मोमेंट जो बोर मैग्नेटॉन इसमें बोर मैग्नेटॉन. यस यस बेटा. इसमें आता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बढ़ेगा वो n into n+1 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट Yes. ऑफ n+2 है। n+2 सॉरी. डन. No. No. यस. शारन No, sir. अगं बाई किती स्लो लिहिते. सर एक्टिनॉइड ज्यादा वेपन्स के लिए यूज किया जाता है ना, वेपन्स बनाने के लिए। एक्टिनेट ज्यादा वेपन, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव. सीधा किसी के ऊपर एक्टिनेट फेंक के मारो वो रेडियो एक्टिव है, वो बेचारे को रेडियो एक्टिव से प्रॉब्लम हो जाती है. सर पकड़ने जाएंगे तो भी होगा। ऑब्वियसली यस. सर पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे का आइसोटोप वो भी रेडियोएक्टिव होता है। क्या बोल रहे बच्चे? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसके आइसोटोप्स है तो वो भी यस उनके आइसोटोप्स, देयर आर मेनी आइसोटोप्स व्हिच आर रेडियो एक्टिव, इसलिए उनका प्रेजेंस अगर आप 11th में आपने देखा होगा बेटा कि एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग आइसोटोप्स का एवरेज निकाल के करते हैं राइट. सो देयर आर हर एक एलिमेंट में कोई ना कोई आइसोटोप होता है, तो हेवियर आइसोटोप इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव मोस्टली. रेडियो एक्टिविटी क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस ना, हमने पढ़ा था नहीं? हेवी न्यूक्लियस. I couldn't understand a word, but yes. Sharon, can we go ahead, beta? Yes. Yeah. Most of their ions are colorless. A large number of ions are colored. ए बेटा, this is not a very strong point. लैंथेनॉइड्स में हमने देखा था their ions are also colored, ठीक है? But Yes. अगर मैं एक्टिनॉइड से कंपेयर करूं तो यहाँ पे more less colored ion, यहाँ पे more colored ions. So most of their ions are colorless. It doesn't mean कि बाकी का ions are not forming colors. सर फेंटली कलर होगा, फेंट कलर, Faintly colored. And यहाँ पे strong colored आएगा, ठीक है? डीप कलर Actinoids, आएगा. their actinoids. paramagnetic and their magnetic properties can be identified easily. They are also paramagnetic, but difficult to explain their magnetic properties. Again, why? Because of their radioactivity. Radioactivity. They do not form oxo-ions, whereas these actinoids they form oxo-ions because of their variable oxidation state, because of their stable
oxidation state of +2 +3 and all. Oxo ions मतलब ion when combined with oxygen. Even Oxygen. OH minus ion is a oxo ion. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. और इन सब के आंसर्स आर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बस इनमें से कोई भी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना, 2 मार्क के लिए हो जाएगा. इजी है ना एकदम, आसानी से लिख के दिया है बेटा. इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो. जोमेटो टू शट डाउन यूएस टेबल रिजर्वेशन बिजनेस. अभी तो इसका आईपीओ हुआ था. Yes. सर केमिकल ट्विन क्या होता है? केमिकल ट्विन. केमिकल ट्विन्स जिनका क्या बोलते हैं, अभी जैसे हमने बोला ना कि दिस बिहेव्स लाइक एल्यूमिनियम, इट बिहेव्स लाइक कैल्शियम, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. लाइक अगर इसने ट्राइऑक्साइड बनाया तो ये भी ट्राइऑक्साइड बनाएगा, अगर इसने हाइड्रोक्साइड बनाया तो ये भी सिमिलर हाइड्रोक्साइड बनाएगा. साइजेस सेम होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है. वैसा. Yes, sir. समझा. गाइस कैन यू हियर मी? Yes. Yes, sir. डन. शारन, No, sir. अमन बेटा अनम्यूट कर लो बेटा. आंसर देते हो तो अनम्यूट नहीं करता. क्विक 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 क्विक. ठीक है बच्चे. Yes. Oh, अभी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स, दे मेक एलॉयज. तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आयरन थोड़ी रहता है बेटा, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अलॉय काम आता है ना बेटा. एयरक्राफ्ट को बनाने, Yes. एयरक्राफ्ट को Yes. स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को यूज करते हैं. ठीक है. Yes. ये फिलामेंट देखो, बल्ब Tungsten वगैरह, filament. टंगस्टन. व्हाई Tungsten. टंगस्टन इज यूज्ड ओवर हियर, ये पता होगा तुम लोग को. yes. Yes. Sir, high melting. High melting High point. melting point, point. correct. टाइटेनियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन होली. पक्का Yes. कलर. कैडमियम देखो, ड्राई बैटरी सेल, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में. दिस इज मसलिन बैग, नॉट मुस्लिम बैग. ठीक है. सो निकल कैडमियम बैटरीज आपने देखा रहेगा, आपके घर में इन्वर्टर्स होंगे तो आपने ऐसी बैटरीज देखी होंगी. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हमारे पास. मुबारक हो बेटा, मेरे पास भी है. ये देखो डीजल लोकोमोटिव्स. ये Locomotive. क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है? ये एक अकेला मेटल इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है क्या बेटा? ट्रेन. ये बेटा आप कभी ट्रेन के नीचे आए हो? No, Yes. no. No. है ना बेटा? No. हाँ, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है. क्यों आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं? बिकॉज उसका स्पीड और उसका मास. सर कैसे रहता है? Momentum बहुत ज्यादा रहता है. रिचार्जेबल ड्राई बैटरीज. रेडियो. ठीक है. रेडियो कंट्रोल. रिचार्जेबल बैटरी जिनको हम लोग रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं. निकल कैडमियम, जेट इंजन, जेट प्लेन, ये स्ट्रॉन्ग चीजों में हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करते हैं. कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका एप्लीकेशंस है, कितना ज्यादा उनका क्या बोलते हैं ये है यूजेस है, इसलिए उनको कमर्शियल लेवल पे पढ़ते हैं बेटा अपन लोग. देखो एनालिटिकल वेट्स. सर क्या है? अरे छोटा छोटा वजन काटा बेटा, एकदम हाँ, प्यारा प्यारा. मालूम एकदम सोना वगैरह होता है ना, सोने में बेटा आप किसी सुनार के पास आपने 1 किलो का वजन देखा बेटा?
कि भैया No. मुझे 1 किलो सोना देना. No, no. He will No, report sir. it to the क्या रहता है? police. Right बेटा, 10 ग्राम सोना is costing 50,000 bucks. Yes. Yes, yes. तो उससे भी कम लोग खरीदते हैं ना, तो उतना हल्का हल्का वेट चाहिए रहता है. Gold कॉपर cup. का कॉइन्स बनता था पहले के जमाने में, Yes, sir. Yes. सिल्वर कॉइन्स. ये Silver तो देखा coin. रहेगा सुनर के पास आपने. Yes. फोटोग्राफिक फिल्म. Yes. कैटलिस्ट तो केमिकल इंडस्ट्री में भर भर के यूज होता है बेटा. Yes. ये देखो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम. दिस इज कैटलिस्ट वेनेडियम ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड. ये कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. Contact process. Contact process. देखो, ये लिख लेना बेटा. ये आपको एंट्रेंस में काफी बार पूछते हैं. टू कन्वर्ट इथीन टू पॉलीइथीन, दिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में which catalyst is used? Ziegler-Natta. What is Ziegler-Natta? Titanium chloride plus aluminium trimethyl. ये आपको दूसरे चैप्टर में भी आएगा, बट अब यहाँ पे आ गया है तो लिख लो, काम आएगा. लिख लिया. No, sir. Yes. अब यहाँ पे हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज टाइटेनियम है ना डी ब्लॉक एलिमेंट. अरे बोलो. Yes, sir. Sir. डन. शैरन. Yes. Done, sir. No, नहीं sir. चलो. शैरन तू बेटा मेरे को परेशान करने के लिए नो बोलती है कि सच में स्लो लिखती है? Sir सच में. ओके बेटा, ओके ओके. डन बच्चे. Yes. सर F ब्लॉक और D ब्लॉक का रिएक्शन नहीं होता है ना? ए ब्लॉक और डी ब्लॉक कर मेटल मेटल के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, एलॉयज बनाता है बेटा वो. Yes, sir. हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है. अरे ये सब तो अपना हो गया ना रे बेटा. Yes. अमोनिया बनाने में भी कैटलिस्ट यूज हो रहा है ना अपना. ये Iron. देखो, ये भी हुआ है ना अपना. अनसैचुरेटेड लिक्विड Yes. ऑयल से सैचुरेटेड Yes. सॉलिड फैट में निकल Hydrogenation of oil. Vegetable oil to वनस्पति घी. वनस्पति घी, घी. वनस्पति डालडा. Hydrogenation. ये देखो, इथीन से इथेनॉल, अल्कीन से ये Alkanal. अल्केनॉल. अल्केनॉल क्या होता है? अल्डिहाइड. Aldehyde. Aldehyde. तो इसके लिए देखो, पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड आर बीइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट. ठीक है. Yes, yes, तो आप yes. पार्ट 2 में भी देख लो. फिर लिखना है क्या? Yes. तब लिखना है. जल्दी लिखो. टाइम लगेगा. Done. कितना टाइम लगेगा बेटा? Done, sir. Done, sir. वेरी गुड बेटा. Done, 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 sir. Done. Sir वो नहीं हुआ. लगा ही था मुझे. इथाइन से साइक्लो ऑक्टाटेटारीन. सर 90% क्या लिखा? मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट 90%. ठीक है बेटा, जल्दी कर. शैरन. शैरन का नहीं होता लिख के. शैरन हो गया बेटा? Yes. पक्का? Yes. ये वाला हुआ? No. ओके. सर इसका मेजर ये तो माइनर क्या बनेगा? उल्टा आएगा क्या सब? बॉन्ड्स. हाँ बेटा. Sir वो पीछे लो.
Then बेटा Yes. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन देख लो। ये देखा था ना आपने, हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल्स, बुलेट्स वगैरह, ये वो अगड़म दगड़म। Yes. जस्ट Yes. रिवीजन। Yes. ये देखो, Lava. Hot iron. हॉट आयरन नहीं, हॉट मेटल है वो। दे आर यूज्ड Metal. एज रिफ्रैक्टरीज। Lava. बोरॉन, Yes. ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना ऐसा भांडा बनाने को यूज होता है जिसमें हम लोग गरम उबला हुआ पिघला हुआ मेटल को रख सके, वरना वो भांडा पिघल जाएगा ना बेटा। Yes. 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 मतलब इससे मालूम पड़ता है कि इसका ये मेल्टिंग देखो, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है ना। यस यस बेटा, वेरी गुड। देन दे आर यूज्ड इन अब्रेसिव्स, साफ करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, गैस मेंटल्स। अरे गैस मेंटल, ये Yes. आधुनिक लालटेन, Yes. लालटेन। आधुनिक लालटेन बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। एटॉमिक रिएक्टर्स, Yes. एटॉमिक बॉम्ब देखा है बेटा कभी जिंदगी में? Yes. Yes, sir. कहाँ देखा है? कल्याण हिरोशिमा में? नागासाकी। Hiroshima, Nagasaki. स्मॉल काटे माने फैट वाली नाका मैन। पे रोज सब लोग एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते हैं। Yes. Sir, मैं Yes. डॉक्यूमेंट्री में देखा था। क्या बोल रहे हो बेटा? आता है डॉक्यूमेंट्री में हाइड्रोक्लोरिक देखा। सर फैट Oh मैन, my God. स्मॉल बॉय। Oh my God. Oh my God. Oh my सर God. एल्यूमिनियम फॉयल और हाँ इसको HCl को रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनता किसको किसको? है। एल्यूमिनियम फॉयल प्लस HCl। HCl मत कर रहे बेटा ऐसा काम तू, और करेगा तो मेरा नाम मत लेना प्लीज। Sir, HCl है मेरा। क्या बोलता है बेटा? HCl है। क्या बोल रहा है? HCl है घर पे? Yes. सर एल्यूमिनियम फॉयल तो उसको मिल जाएगा जल्दी। एक ही मिनट रुको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग फॉर यू गाइस। ये वाला था। ये वाला है क्या? तुम लोग को ब्लास्ट फर्नेस समझा था क्या? नो सर। हाँ. क्या नो? No. समझा ही नहीं और था तुम उसके लोग को अंदर वो ब्लास्ट बहुत फर्नेस? सारा सेक्शंस भी है इसके Yes, अंदर, sir. ताकि वो ऊपर से चार्जेस आते हैं, वो नहीं समझा। है? सर वो बोर्ड पे नहीं। नहीं। टेक्स्ट बुक Yes, में sir. दिया है हाँ, वो कि चार्जेस आते हैं ऊपर से, चार्जेस सेपरेट होता है। वो चार्जेस क्या आते हैं, क्या मतलब? अरे चार्ज मतलब वो मैंने बताया था ना, आयरन और लाइमस्टोन और कोक को कंबाइन करके चार्ज Yes. बोलते हैं अपन। अच्छा। यस सर। ठीक है, यस यस। एक ही मिनट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ इजी वीडियो फॉर यू गाइस। यस Try to grasp from this video. Yes. दिख रहा है स्क्रीन? Yes. यस। ये देखो, ये ब्लास्ट फर्नेस है आपका। ऊपर से चार्ज आता है, यहाँ से चार्ज मतलब अपना रॉ मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन, आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन। यहाँ से अपन क्या डाल रहे हैं? गर्म हवा डाल रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे वो बर्न होगा। और अलग अलग लेवल्स पे अलग, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा। जो भी हॉट वेस्ट गैसेस होंगे वो यहाँ से ऊपर से निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ पाइन एंड कोन अरेंजमेंट। वो सिपर जैसा था ना, सिपर पुचुक करते तो खुल जाता है, पुचुक किया तो बंद हो जाता है, वैसा रहता है ये। स्लैग Yes. जो है ऊपर से निकलता है, मोल्टन मेटल जो पिग आयरन रहता है वो नीचे से निकलता है। ओके Yes. ये देखो, बॉटम ऑफ द फर्नेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है? जो मैंने कोक डाला था, कार्बन डाला था, इट इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच इज हेल्पिंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ओके, यस।
Yes. सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने डाला था वो दैट इज ब्रेकिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ, इट विल हेल्प टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर, और कैल्शियम ऑक्साइड विल कंबाइन विद द सिलिका एंड इट विल बी रिमूव्ड एज कैल्शियम सिलिकेट व्हिच इज द स्लैग. स्लैग मतलब इम्प्योरिटी. Yes. Yes. मिडल ऑफ द फर्नेस पे देखें, ये सब नीचे हो रहा है. मिडल में देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. ये कार्बन मोनोऑक्साइड विल हेल्प मी टू रिड्यूस द मेटल आयरन ऑक्साइड. ठीक है, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, इट इज कंबाइनिंग विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम ओवर हियर. स्लैग. सिलिका मतलब SiO2 मतलब क्या, मिट्टी. मिट्टी. टॉप ऑफ द फर्नेस में क्या हो रहा है, ये देखो Fe reduce होगा. Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना, वो कार्बन गैस जो बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो Fe2O3 जो ऊपर से आ रहा है उसको रिड्यूस करके Fe बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गैस रिलीज हो रहा है ताकि टेम्परेचर हाई रहे इसका. ये जो Fe बना है बेटा, ये बहुत ही इम्प्योर स्टेट में रहेगा, जो नीचे गिर जाता है हैवी होने के कारण, और यहाँ से Fe निकल जाता है. अभी थोड़ा आइडिया आया तुमको? Yes sir. Yes. 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 शुभम Yes sir. समझा समझा sir. लिख लिया ये? No Yes, sir. No. नहीं लिखा है. ये लिख लो No, प्लीज. sir. डायग्राम घर पे बनाना, अभी मत बनाना, डायग्राम भी बनाना. लेकिन योर होमवर्क इज एवरीबॉडी इज गोइंग टू ड्रॉ अ वेल स्ट्रक्चर्ड और लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एंड सेंड इट टू मी. या फिर सैटरडे संडे को आके दिखाना मुझे. सर सैटरडे संडे कब? Sunday को. संडे को है. सर टेक्स्ट बुक वाला भी चल जाएगा ना? पर मैं दोपहर को आऊंगा. क्या? टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम भी चल जाएगा ना? अरे टेक्स्ट बुक वाला ही बनाना है बेटा. ओके देन. तो किस में भेजना है? किसमें भेजना है? तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, भेज दो ना मेरे को डायरेक्टली. Yes, sir. नहीं है. लोग क्लास को भेजो, क्लास ये. मुझे फॉरवर्ड कर देगी, और अपना डायग्राम पे नाम लिख देना. बिना नाम के ऐसे कुछ भी भेज देते शाणे लोग हैं, मैं जानता हूँ ना क्या करते हैं. सेम डायग्राम को सब फ्रेंड्स को भेज देंगे कि मैंने बना लिया, तू भी इसको भेज दे, तू भी इसको भेज दे. यस सर ऐसा ही होता है. I have been into schools, I have been into colleges, so do not act smart with me. I know how will you copy and how much you will copy, because I have copied. Yes. So I'm not telling you not to copy, I'm just telling you don't get caught while copying. Yes yes. Yes, sir. हो गया? No. No. पीरभू. पीरभू. ये डायग्राम मत बनाओ, अभी सिर्फ रिएक्शन लिखना गाइस. सर डायग्राम बना दिया सर मैंने. वेरी गुड शुभम. एंड डन. सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अरे वो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर. मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट लगा करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करना पड़ेगा. एंट्रेंस में करते बेटा वो. यस. एनसीईआरटी में भी. हाँ करे. अरे यू रिमेम्बर मैंने कलर्स के टाइम पे बताया था, डी ब्लॉक इट ब्रेक्स इनटू T2G एंड ये वाला. इट इज वेरी Yes, सिमिलर टू yes. दैट. Easy Yes, sir. T2G. Yes. इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. यस यस. हो गया दोस्तों? No. Yes sir. डायग्राम अभी नहीं बनाना है. Done, sir. डन. Yes. Yes sir. ये देखो, these are the waste gases which are produced. Nitrogen, carbon oxide and carbon oxide. ooh. यस सर समझा. ठीक है. Yes, sir.
एक ही मिनट रुको। ये वाला था क्या वो? आई डोंट नो। ये अभी दूसरे जो वीडियोस हैं बेटा उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। एक में बहुत ही स्टूपिड वे दिया है याद रखने के लिए, हेमेटाइट को हेमा मालिनी बोला है, लाइम को नींबू बोला है, कोक को डाइट कोक बोला है। वैसा देखना है स्टूपिडिटी तुमको? इट्स स्टूपिड, आई डोंट थिंक सो दैट्स वेरी हेल्पफुल। No, sir. Sir, ऐसे में तो याद नहीं। हाँ sir. हाँ ऐसे ही याद कर लो, इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा ये याद करना, ठीक है ना? यस एक ही मिनट रुको, ये वाला देख लेता हूँ। हाँ ये वाला तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। लास्ट क्लास में दिखाया था ना, वो बर्न हो रहा है, आग निकल रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, Yeah. और हाँ, एक्चुअल yes, वीडियो Yes, उसका। sir. ठीक है? Okay guys, so this brings us to the end of the chapter and we have completed transition, inner transition elements also. Entrance बाकी है। हाँ entrance अभी आज ही सब आज पढ़ना है तुझे। Entrance भी इसका करेंगे, but Yes. for entrance please study. Yes. Yes. Please तो study. डाउट बाकी हैं? डाउट बाकी है जो सब भेज दो बेटा मेरे को doubts. Shubham, I am available 24/7. Although I will not reply 24/7, but I am available 24/7 ना on WhatsApp and on. तो आप मेरे को डाउट्स कभी भी भेज सकते हो। सर मेरा नहीं। तुमचा नंबरच नाही। ए तेजस, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ तेजस, प्लीज आज मुझे कुछ भी करके याद दिलाना, और मुझे इस बच्ची के लिए वो जो कैलकुलेशन भेजना है वो मैं भेज दूंगा, प्लीज हाँ सर। डू दैट विद मी ना। Sharon, can you once forward it to Tejas and he will send it to me, सर please? उसका नंबर नहीं है मेरे। तो मेरे नंबर पे भेज शारन, ठीक है? सर आपका नंबर नहीं है मेरे। मैं अभी देता हूँ बेटा शारन, रुक। यस। हेलो सर। कौन है? सर वो अक्षय। एलिंगम डायग्राम नहीं बताया आपने मेटोलॉजी में। एलिंगन डायग्राम अपने को नहीं है ना इसमें, इस वाले पोर्शन में। यस मैम, एंट्रेंस में है बट एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा ना, डोंट वरी। एंट्रेंस, यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था उसमें एक डायग्राम आ रहा था बीच में? यस सर। ठीक है बच्चे। शारन, नाउ यू कैन सेंड मी योर डाउट्स डायरेक्टली, ओके? यस। अच्छा, and my number is only for doubts and studies, nothing else. This Yes. is for everyone who has my number. Yes. यस सर। ठीक है? चलो then, I'll see you in the next lectures, maybe tomorrow and day after tomorrow, and we will start with something more related to this same thing. तो जैसे कि अक्षय ने कहा